اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو لوگ نماز ادا کر چکے ہیں وہ لوگ راستے میں ادھر ادھر نہ کھڑے رہیں، اگر کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو سائیڈ میں کھڑے رہیں تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ جو لوگ نماز ادا کر چکے ہیں روڈ کے بالکل سائیڈ میں کھڑے ہو جائیں تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ شروع کریں لیکن اطمینان سے پڑھ سکیں، تو پیچھے وقت تو اطمینان سے پڑھ سکیں، ٹائم لے کر ایسا نہیں تو وقت تو کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ نماز ادا کر چکے ہیں وہ لوگ راستے میں نہ کھڑے رہیں، روڈ کے کنارے بالکل سائیڈ میں ہو جائے تاکہ آنے جانے والوں کو دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک، 2 منٹ ویٹ کریں۔ جو لوگ آ رہے ہیں ذرا ان تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو اپنے قدموں پہ تیزی کو بڑھائیں اور عیدگاہ جلدی پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ وقت پر نماز شروع ہو سکے۔ میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ چندہ نہ کیوں تو چندہ کر لیں۔ جماعت کھڑی ہونے میں بہت کم وقت باقی ہے۔ جو لوگ آ رہے ہیں راستے میں ہیں اگر ان تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو تھوڑا قدم کو جلدی بڑھائیں تاکہ وقت سے نماز شروع ہو سکے۔ جو لوگ عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں فضول باتوں میں نہ لگے، تکبیر پڑھتے رہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی تکبیر اور تحلیل بیان کرتے رہیں، یہ بہت ہی متبرک وقت ہے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو سلف کے طریقے پر اس مقدس دن یعنی عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں انہی کے الفاظ میں، جیسا کہ ہمارے اسلاف عید کے دن جب ملا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے تقبل اللہ منا و منکم، یعنی اللہ ہمارے بھی اعمال کو قبول فرمایا اور تمہارے بھی اعمال کو قبول کرے، آمین۔ سامعین کرام، آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے اور آج مسرت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جو ایک بندے مومن کے زبردست اور بڑے امتحان کے بعد حاصل ہے، یعنی ایک امتحان میں مومنوں کو ڈالا گیا۔ ساری چیزیں حلال تھی لیکن وہ موجود ہونے کے باوجود ایک بندے مومن وضو کے لیے پانی تو منہ میں لیتا تھا یا اسی طریقے سے کبھی منہ کو صاف کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈالتا تھا، لیکن وہ جائز چیز تھی، لیکن ایک وقت متعینہ کے لیے وہ اپنے حلق میں نہیں اتار سکتا تھا۔ اتنی بڑی آزمائش سے گزر کر وہ آج کے دن یہاں پر پہنچا، یعنی رمضان کے روزے مکمل ہو گئے۔ رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد اب آج ہم لوگ جو یہ عید کا تہوار منا رہے ہیں یہ ہمارے لیے تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نوازش ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے اس کی تکبیر اور تحلیل بیان کرتے ہوئے ہم ایک میدان میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں۔ میرے بھائیوں، اس انعام کی خوشی آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے
जैसे एक छोटा बच्चा है हमारे यहाँ, अभी वो स्कूल में जाना शुरू किया है, अभी चंद दिन हुए या साल भर हो गए, उसका सालाना इम्तिहान हो गया, एनुअल एग्जाम होने के बाद क्या है, अब उसके हाथ में रिजल्ट दी गई है। वो रिजल्ट पाते ही बड़ा खुश होता है बच्चा, वो अपने घर में लाकर दिखाता है, उसके घर वाले भी बड़े खुश होते हैं, तरह तरह के तकरीबात मुतय्यन किए जाते हैं। ये इसी तरीके से स्कूल में भी बहुत सारे तकरीबात किए जाते हैं ताकि उसके खुशी का इजहार हो सके, उसे तोहफा तहर दिया जाए, उसे मुबारकबादियां दी जाए। यही चीज आज हूबहू अल्लाह ने हमारे इम्तिहान के बाद जब हम पास हो गए तो अल्लाह ने ये ईद का दिन दिया, ये ईद का त्योहार है। अल्लाह की तरफ से समझिए कि रिजल्ट मिलने के बाद हमारी ये खुशी जो है, उस खुशी के इजहार के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र है कि हमने रमजान मुबारक के पूरे रोजे रखे, अल्लाह का शुक्र है कि हमने तरावी का इस्तेमाल किया, अल्लाह का शुक्र है कि हमने सदकात और खैरात भी किए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम चीजों को कबूल फरमा ले, आमीन। मेरे भाइयों, ये ईद का त्योहार हमें क्या पैगाम देता है? ये ईद हम ये समझे सिर्फ नए कपड़े पहनकर चले आए, मैदान में आ जाए, इमाम के पीछे खड़े हो जाए, 2 रकात नमाज अदा कर ले, या ईद इसी का नाम है? पैगाम क्या दे रहा है? आइए मैं चंद मिनट में ईद का पैगाम आपके सामने बयान करूं। आज अक्सर आदमी जो है, हर शख्स जो है, इससे नाबलद। ईद का पैगाम क्या है? सबसे पहले मुहासबा नफ्स। ईद हमें ये पैगाम दे रहा है, अपने नफ्स का मुहासबा करो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो तुमने किया क्या है अब तक। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में नमाजें पढ़ी हैं, क्या आदत बन गई है कि नहीं बनी है? क्या आदत बनी है हमारी कि नहीं बनी है? अगर नहीं बनी तो उसे सुधारने की जरूरत है। रमजान मुबारक के अंदर हमने जो जबान की हिफाजत की है, झूठ बातें नहीं बोली, लोगों को गालियां नहीं दी, उल्टे पुल्टे अल्फाज हमने नहीं निकाले, क्या वो इस्लाह हो गई या नहीं? अभी भी वो जबान पर कंट्रोल है या नहीं? कि चांद देखने के बाद फिर हम वही उसी डगर पर आ गए, वही रफ्तार, वही बेडंगी जो पहले थी वो आप भी, यानी गाली गुलूज अब भी कर रहे या नहीं? रुके, मुहासबा कीजिए कि रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, हम शोर शराबा नहीं करते थे। अगर कभी लड़ाई का मौका आता भी था तो हम अपने नबी को हदीस को याद करते थे कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम रोजे की हालत में हो, कोई तुम्हें गाली गुलूज दे, कोई तुम्हें लड़ाई पर उकसाए, तो कह देना कि मैं रोजे से हूं। क्या वो कंट्रोल बाकी है या नहीं बाकी है? रमजान हमें तरबियत दे रहा, मुहासबा करिए और सोचिए कि रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में हमने तरावी का इस्तेमाल किया। क्या आज वो शौक बाकी है कि हम तहज्जुद की नमाज पढ़ें? क्या वो शौक बाकी है कि हम लोग तरावी जिस तरीके से इत्मीनान के साथ अदा करते थे, तरावी के लिए हम लोग बड़ा इंतजार क्या करते थे, तरावी के लिए हम लोग बड़े जोश और खरोश के साथ हम मस्जिद जाया करते थे, क्या वो शौक बाकी है कि आज भी हम उसी तरीके से अपने घरों के अंदर तहज्जुद के नमाज का एहतमाम करें? ये मुहासबा का वक्त है। मेरे भाइयों, हम नमाजी बने या नहीं बने, इसकी जांच कीजिए। हम झूठ बोलना छोड़े कि नहीं छोड़े, इसकी जांच कीजिए। हम क्या कुरान की तिलावत वैसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी जांच कीजिए। अगर हम करेंगे तो बड़े ही मुबारकबाद हैं। अगर हम झूठ से बच जाए, अगर हम कुरान की तिलावत वाले हो जाए, अगर हम नमाजी हो जाए, अगर हम तहज्जुद गुजार हो जाए, अगर हम सदक़ात और खैरात वाले हो जाए, तो हमारे लिए ये खुशनसीबी की बात है, हम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि हमने अल्लाह के उस कलाम को माना है, हमने अल्लाह के उस फरमान को सच कर दिखाया है जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरह आल इमरान के अंदर मुसलमानों को जगाते हुए कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, इस मौत को मैंने भेजा क्यों है, ये मौत वाकई क्यों होती है, मौत आती क्यों है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है ताकि कयामत के दिन तुम्हें दुनिया के अंदर जो तुमने किया उसका बदला दिया जाए। तुमने दुनिया के अंदर क्या किया है, अच्छे काम के उसका अच्छा बदला लो, बुरे काम के तो बुरा बदला लो। लेकिन अल्लाह ये वार्निंग दे रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यकीनन हर नफ्स को मौत का मजा चखना। फिर आगे अल्लाह कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया, जो शख्स आग से बचा लिया गया, वो दरहकीकत और इसी तरीके से वो उदखिलल जन्नत फक़द फाज़, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, ये शख्स बड़ा ही कामयाब है। फिर आगे अल्लाह कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ऐ रोजा रखने वाले,
तरावी का एहतमाम करने वाले, अल्लाह इस दुनिया की हकीकत बयान कर रहा है। रमजान के रोजे खत्म हो गए लेकिन इबादतें खत्म नहीं हुई है। अल्लाह कह रहे हैं ये दुनिया के साजो सामान जो है महज धोखा है। दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं हम जिससे फायदा उठा रहे हैं, जो भी चीजें हैं ये सब चीजें धोखे का सामान है, बचने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये बतला रहा है, ये पैगाम है ईद का कि इस दुनिया की वक़्त क्या है उसको जान लो। इस दुनिया की हैसियत यही है कि चीजें हलाल थी लेकिन अल्लाह ने हराम कर दिया कुछ देर के लिए। तो ये दुनिया की हकीकत है मेरे भाइयों, इस चीज का मुहासबा करो कि हमने किस लाह कितनी की। इसी तरीके से ईद किस चीज का नाम है, ईद का पैगाम क्या है? ईद का पैगाम यही है कि ये ईद सिर्फ नए कपड़े का नाम नहीं है, ये ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है, अच्छा खाना खाने का नाम नहीं है, ये ईद हमदर्दी का त्योहार है। क्योंकि जैसे ही चांद निकलता है हम लोग गेहूं लेते हैं, गरीबों के यहाँ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि गरीबों के यहाँ खाना हो जाए। उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो रोजे में हमने फजूल बातें कर ली है, हमसे जो गलतियां सरजद हो गई है वो चीज वो काफी हो जाए, इसके जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माफ कर दे। ये रोजे का ईद का पैगाम है कि हमदर्दी हमारे अंदर होनी चाहिए, सिर्फ नए कपड़े का नाम नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि जिसके रोजे कबूल हो जाए, जिसकी नमाजें कबूल हो जाए, या वो बंदा जो किसी हर दिन गुनाह ना करे, यानी गुनाह से हर घंटा हर लम्हा बचा रहे, उसकी हर दिन हुई है। मेरे भाइयों, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जलीलुल कद्र अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन है। इनके दो वाक़े दिल चीर देंगे आपके। इनके दो वाक़े सुनिए आप, जरा गौर कीजिए। हम जो ईद समझते हैं, हम ईद ये समझते हैं कि अच्छा कपड़ा पहन लिया जाए, ईद ये समझते हैं बेहतरीन खाना बनवा लिया जाए। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज का घर देखिए, जरा आइए उनके घर में, उनकी ईद कैसी है, जरा पैगाम लेकर जाइएगा। उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी आती है, उनको ये पता, जब देखा कि ईद का वक्त करीब है, बाहर देखते हैं बच्चों के कपड़े आ रहे हैं, वो एक दूसरे से बयान कर रहे हैं मेरे ये कपड़े हैं, मेरे ये कपड़े आए हुए हैं। वो अपने शौहर के पास जाते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज जरा देखिए बच्चे छोटे हैं, ये इनके लिए नए कपड़े का इंतजाम कर दीजिए। बाहर बच्चे बात कर रहे हैं, मेरे बच्चे आते हैं मुझसे शिकवा करते हैं, जरा इनके लिए नए कपड़े का इंतजाम कर दीजिए। उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि मेरे पास तो मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं इनके लिए नए कपड़ों का इंतजाम कर सकूं। सबक है, पैगाम है, जरा सुनिए। जलीलुल कद्र है उमर बिन अब्दुल अजीज, उनका दौर भी बड़ा ही बेहतरीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है। कहते हैं मेरी प्यारी बीवी, तुम जानते हो मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि उसमें से मैं बच्चों का कपड़ा भी ला सकूं, घर भी चला सकूं। तो कहा ऐसा है, बीवी ने मशवरा दिया उमर बिन अब्दुल अजीज जरा एक महीने की तनख्वाह एडवांस ले लीजिए। एक कागज निकालते हैं, उस पर लिखते हैं जो बैतुल माल का मालिक है कि जरा मुझे इस महीने की तनख्वाह और अगले महीने की तनख्वाह दोनों एक साथ दे दो, क्योंकि ईद का त्योहार करीब है, मेरे बच्चों के कपड़े नहीं आए हुए हैं, उनके लिए कपड़ों का इंतजाम हो सके। जरा दिल चीरने वाला अल्फाज सुनिए। वो रुकाव पहुंचता है वहां पर बैतुल माल का जो जिम्मेदार है, वो पढ़ने के बाद की उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफतुल मुस्लिमीन का कहना है कि जरा मुझे 2 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो। उस कागज को पलटते हैं, वहां पर लिखते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज जरा इस बात की आप गारंटी दे दीजिए कि आप इस महीने भी जिंदा रहेंगे, आप अगले महीने भी जिंदा रहेंगे। अगर आप इस बात की गारंटी दे दे तो मैं आपको 2 महीने की तनख्वाह देने के लिए तैयार हूँ। जब ये रुका उमर बिन अब्दुल अजीज के पास पहुंचता है, उमर बिन अब्दुल अजीज पढ़ते हैं, मौत याद आ जाती है, मौत की सख्ती याद आ जाती है। वो अपनी बीवी से कहते जरा बच्चों से कह देना पुराने कपड़े पहन लेना, उसमें शर्म महसूस मत करना, उसमें आर महसूस मत करना, अल्लाह जन्नत में बेहतरीन कपड़ा पहनाएगा। ये ईद का पैगाम है, अमीरुल मोमिनीन पैगाम दे रहे हैं कि बच्चों से कहना बोसीदा कपड़ा पहन लेना, अल्लाह जन्नत में बेहतरीन लिबास पहनाएगा। हम ये समझते हैं अच्छे खाने खाने के लिए अच्छा खाना खाएं तभी ईद है। जरा उमर बिन अब्दुल अजीज का एक वाक़या और सुनिए। उमर बिन अब्दुल अजीज ईद की नमाज पढ़ते हैं, अपने घर में पहुंचते हैं। घर में पहुंचने के बाद बैठते हैं, उनकी बच्चियां आती हैं, मुंह ढाक लेती है। जरा सोचिए
उमर बिन अब्दुल अजीज आए हुए हैं, उनके अब्बू आए हुए हैं, अमीरुल मोमिनीन है, उस वक्त के खलीफा हैं, लेकिन उनकी हालत क्या है? बच्चियां मुंह ढांप कर आ रही है, अप्पा ईद मुबारक हो। वो भी जवाब देते हैं तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि मेरी प्यारी बेटी अपने मुंह को क्यों छुपाया हुआ है? मुझसे किस बात का पर्दा है? मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझसे क्यों पर्दा कर रहे हो? वो बेटियां जो अल्फाज कहती हैं, जरा सोचिए और अपने आप को वहां पर रखिए, आपके आंसू आपके आंखों से आंसू गिर जाएंगे, आंखें डबडबा जाएंगी। उमर बिन अब्दुल अजीज का इतना पूछना होता है, उनकी बेटियां कहती है अब्बा जान घर के अंदर खाने की चीजें नहीं है, अरे अब्बा जान घर के अंदर अनाज नहीं है, 2 प्याज बचे हुए थे, हमने उसी को खाया है, हमने उसको खाया है, हमारे मुंह से बदबू आ रही प्याज की, हम नहीं चाहते कि आपको तकलीफ पहुंचे, इस वजह से हम अपने मुंह को ढके हुए हैं ताकि हमारे अब्बा बेहतर को तकलीफ ना हो। ये उमर बिन अब्दुल अजीज है, ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, अगर चाहते तो बहुत कुछ इंतजाम कर सकते थे, लेकिन उनकी बेटियां कहती है अब्बा खाने के लिए घर में आज के दिन कुछ नहीं है, 2 प्याज थे तो हमने दोनों बहनों ने खाए, उसकी बदबू आप तक न पहुंची, इस वजह से हमने अपने मुंह को छुपा लिया। मेरे भाइयों, ये ईद है इनकी। हम ये समझते हैं सिर्फ नया कपड़ा पहने, हमारी इबादतें कहाँ है? ये लोग रातों को जागा करते थे, ये लोग अल्लाह के बड़े प्यारे थे, बड़े दुलारे थे, दुनिया की तमाम आसाई से मौजूद थी उमर बिन अब्दुल अजीज के पास। जब ये खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं बनाए गए थे, जिस रास्ते से गुजरते थे लोग पहचान जाते थे, इतना उम्दा किस्म का खुशबू लगाते थे, लोग पहचान जाते थे कि उमर बिन अब्दुल अजीज गुजरे हैं। मेरे भाइयों, मैं चंद बातें और कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये ईद का मौका है, हर शख्स को चाहिए कि अपने आस पास देखे, जो लोग इस लायक नहीं हो उनके घर अच्छे खाने बने हो, उनको अपने घर पर लाइए खाना खिलाइए। अगर पता लगे कि किसी कोई बच्चा ऐसा है जो यतीम है, उसके बाप नहीं है, जरा आइएगा उसके सर पर हाथ रखिएगा, उनके हाथ में ईदी दीजिएगा और कहिएगा कि बेटा तुम्हारे बाप नहीं तो हम तो हैं, उनके ऊपर शफ़क़त का हाथ करिएगा। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाऊंगा, ये ईद अमन का त्योहार है। आप लोग भी इस चीज का सबूत दीजिए कि इस्लाम अमन अमान का मजहब है। आप लोग रोडों पर चिल्लाइए नहीं। ये ईद का त्योहार आपने मना लिया, नमाज अदा कर लिया, आप अपने घरों को जाइएगा, आप लोग रोडों पर चिल्लाइएगा नहीं। किसी को परेशानी हो ऐसा कोई काम मत करिएगा। और इसी तरीके से हर शख्स को ये समझिए कि हिंदुस्तान का हर वासी हमारा भाई है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, ये समझिएगा कि वो हमारा भाई है, हम वतन हैं, हम उसके दुख सुख के साथी हैं। मेरे भाइयों, इसकी मिसाल एक यूं समझिए कि आप किसी की हमदर्दी कुछ देख कर मत करिएगा।